Hello everyone, a warm welcome to all of you. This is Nandita Nagia and today we will discuss about the income tax slab rates for individual under budget 2023. And for that we have with us CIP Vivek Khurana sir. Before Vivek sir start his deliberation, I request you all that please subscribe the channel so that will receive all the notifications about our new videos and webinars. So, sir, there is a lot of confusion regarding income tax slab rates. Like जो basic exemption limit revised हुई है that is up to rupees 3 lakhs and ma'am said that there is no income tax up to rupees 7 lakh. So what is that? Can you please guide us on the same? Thank you very much, Nandita ji and the team CA Sansar for giving me once again opportunity on your platform to speak on this important topic regarding the income tax slab rates for the individual under this Union Budget 2023. And you have rightly said there are some confusion like the exemption limit is revised from 2,50,000 to 3 lakh rupees. And then ma'am said at that time also I was into the parliament. तो जब मैम ने बोला कि 7 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं लगेगा बट वो नेक्स्ट लाइन जो थी न्यू टैक्स रिजीम मैं वो उसको थोड़ा स्किप कर गया था तो आई थॉट कि एकदम कैसे हो गया ये 2,50,000 से 3 या 3 से 7 तो डेफिनेटली दैट वी विल डिस्कस थ्रू द दिस पीपीटी. So I think it's a visible. So this new income tax slab rate in this budget 2023. तो we all aware कि अभी जो बजट प्रेजेंट हुआ है इनटू दिस पार्लियामेंट लोकसभा में तो फर्स्ट इट विल बी डिस्कस देन पास फ्रॉम द लोकसभा फिर ये राज्यसभा से पास होगा देन प्रेसिडेंट असेंट्स देन इट विल बिकम द फाइनेंस एक्ट and it would be applicable from the April 23 to 31st March 24 means the financial year 23-24 and the assessment year 24-25. तो ये सारा इसके ऊपर हम अभी डिस्कस करते हैं. Before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be construed the views of the CS Ansar, ICI, or any other person or any other authority. And don't take it any legal advice or the legal opinion, professional advice or the professional opinion. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And the my request to all the viewers, please also go through the Finance Bill 2023, then Memorandum to Finance Bill, ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट जो अभी हमारा 1961 में था वो जो 1961 चल रहा है उसमें जो अमेंडमेंट दी गया था जो भी रेलेवेंट नोटिफिकेशन है उसको एक आप क्रॉस चेक भी कर लेना. सो जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 विच इज कंटिन्यू 31 मार्च 23 को कंप्लीट होगा जिसकी हम रिटर्न फाइल करेंगे तो असेसमेंट ईयर 23-24 तो देयर आर टू टैक्स रिजीम्स आर देयर. वन इज ओल्ड टैक्स रिजीम एंड देन another one is alternative tax regime जिसको हम न्यू टैक्स regime भी कहते हैं which are under section 115 BAC तो which are for the individual and HUF. तो अभी जो हमारी टैक्स regime है जो करंट अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए है उसमें अभी थ्री दिस वन जो थे क्राइटेरिया थे. वन वाज अप टू द एज ऑफ 60 देन अबव 60 एंड अप टू 80 देन अबव 80 मींस जो सीनियर सिटीजन्स या जो सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए लगे हैं बट आई एम टेकिंग ओनली द जो अप टू एज ऑफ द 60 है मींस इतने सारे स्लैब्स हो गए. आई डोंट थिंक सो एक नॉर्मल टैक्स पेयर तो छोड़ दीजिए टैक्स प्रोफेशनल भी नहीं याद कर दे पाएगा कि मींस एक आपके अप टू एज 60 देन 60 टू 80 80 एंड अबव देन ओल्ड टैक्स regime then new tax regime then new tax regime revised. Really difficult बट थैंक्स टू द सॉफ्टवेयर कंपनी जो हमें याद नहीं करना पड़ता डाटा फिलअप कर दो आपका सब ऑटोमेटिक सारा टैक्स आ जाएगा. तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी अभी हम आई एम टेकिंग अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स उसमें क्या था जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी इट्स ओनली जो अभी भी एप्लीकेबल है इट्स ओनली अप टू 2,50,000 और कई सालों से ये चल रही है. मतलब इनको क्या मजा आ रहा है कि वो बस वो एक रिबेट दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी हम अभी डिस्कस करेंगे. काफी टाइम से इसको रिवाइज चेंज ही नहीं किया फर्स्ट टाइम ये 250 से 3 लाख की. तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम में थी अप टू 2,50,000 नील देन 2,50,000 1 से 5 लाख रुपीज 5%, 5 लाख 1 रुपीज से 10 लाख 20%, 10 लाख एंड अबव 10 लाख रुपीज 30%. ये तो ओल्ड टैक्स रिजीम के क्राइटेरिया थे. इसके बाद वो सीनियर सिटीजन का अलग था उसके बाद सुपर सीनियर सिटीजन जो थे हमारे उनका अलग था. तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम में है.
देन एक और जो टैक्स रिजिम लेके आए थे ये फाइनेंशियल 2023 में जो था, वो उसमें जो अलग अलग स्लैब रेट्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, एंड दैट वाज इन अंडर सेक्शन 115 बी, उसमें बीएसी में। तो उसमें क्या था, इन्होंने एक स्लैब बना दिया था कि अप टू 250 तक आपको कोई टैक्स नहीं है। देन नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, देन नेक्स्ट 2,50,000 पे 10%, देन उसके बाद जो 2,50,000 है उस पे 15%, देन नेक्स्ट 2,50,000 20, देन नेक्स्ट 2,50,000 पे 25, एंड अबव 15 लाख 30%। ये जो न्यू टैक्स रिजीम या अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम जिसको हम कह रहे हैं, दिस इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, जिसकी आपको अभी रिटर्न फाइल करनी होगी 31 मार्च के बाद फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। और इसमें आपको एक रिबेट भी है जो 87 में है आपकी, कि टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपीस तक है तो आपको एक रिबेट मिलेगी 12,500, मीन्स यू कैन से दैट नो टैक्स अप टू रुपीज 5 लाख। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो अब जो मैम ने जो बजट प्रपोजल, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट प्रपोजल में बोला था, ये सेम बजट स्पीच से ही मैंने उठाया। नाउ आई कम टू व्हाट एवरीवन इज वेटिंग फॉर, द पर्सनल इनकम टैक्स। तो उन्होंने बताया था। तो फर्स्ट वाज ऑन द रिबेट, कि जो रिबेट मैंने अभी आपको बताया 87 में, विच आर फॉर अप टू 5 लाख रुपीज फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम, उसको इन्होंने चेंज कर दिया है। और इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन 7 लाख रुपीज जो करे। एंड देन शी सेड देयर वर सर्टेन चेंजेस अंडर द टैक्स स्लैब फॉर द न्यू टैक्स रेजिम। जो ये न्यू टैक्स रिजीम थी जो हमारी, मैंने आपको बताया 250, फर्स्ट 250 पे नील, फिर नेक्स्ट 250 पे 5%, 10, 15, 20, 25, इसको रिवाइज किया। जो ये ओल्ड वाली है, जो ओल्ड जो 5, 20, 30% है, इसको नहीं टच किया। जो न्यू टैक्स रिजीम है इसी को रिवाइज करा है, दिस वन, इसके स्लैब रेट्स का एक कम किया है और कुछ रेट में डिफरेंट किया है। तो ये जो इसकी एग्जाम्पशन लिमिट है जो बजट प्रपोजल में है, विच आर एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25। तो अप टू 3 लाख, जो 2,50,000 था उसको 3 लाख रुपीज कर दिए, उस पर नील टैक्स। देन नेक्स्ट 3 लाख पे, मीन 3 लाख 1 से 6 लाख तक 5%, देन नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, देन नेक्स्ट 3 लाख पे 15%, देन नेक्स्ट 3 लाख पे 20%, एंड अबोव 15 लाख 30%। तो एक जो स्लैब था इन्होंने 250 वाला उसको 3 लाख कर दिया और एक बीच में से 25% रिमूव कर दिया है। तो दिस इज फॉर द न्यू टैक्स रिजीम जो रिवाइज्ड है। एंड जो पहले भी था आपका, जो ये इसमें जो क्या डिफरेंस था, जो आपके ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम में जिसकी अभी आप रिटर्न फाइल करेंगे, जो ओल्ड में है उसमें तो आप जैसे फॉर एग्जांपल एग्जम्पशन एंड डिडक्शन, जैसे कोई सैलरीड क्लास है तो एचआरए, तो या फिर एलटीए वगैरह, या फिर एटीसी की डिडक्शन, एटीडी, उसकी में that claim under the old tax regime। बट न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप लाइक एग्जम्पशन या डिडक्शन, एक्सेप्ट फ्यू वन, उसको आप क्लेम करें। कि आपको गवर्नमेंट क्या करिए, पहले गवर्नमेंट कहती थी कि आप सेविंग करो, जितनी ज्यादा से ज्यादा सेविंग करो आपको टैक्स से हम एग्जम्पशन देंगे, डिडक्शन मिलेगी। अब कह रही है आप एक्सपेंडिचर करो, हमें नहीं मतलब आप सेविंग करो या नहीं करो, बिकॉज उसमें भी उनको बेनिफिट हो रहा है। आप जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर करोगे उसमें जीएसटी लगेगा, आपको इंडायरेक्ट टैक्सेस पे गवर्नमेंट को मिलेगी। नाउ गवर्नमेंट वांट्स कि हमें टैक्स दे दो, आप सेविंग करो ना करो हमें कोई मतलब नहीं। तो दिस, अंडर दिस न्यू जो रिजीम है, जो रिजर्वाइज है, पहले क्या था, जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी जो मैंने अभी पीछे आपसे डिस्कस किया था, तो फाइट ये वाली, दिस वन 5, 20, 30, 10 लाख वाली है। तो उसमें क्या था, दैट वाज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो अगर आपको न्यू में जाना होता था तो आपको बताना पड़ता था कि यस आई एम अप्लाइंग फॉर द न्यू टैक्स रिजीम। बट नाउ दिस न्यू जो रिवाइज टैक्स रिजीम है, दिस इज बाय डिफॉल्ट। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, देन यू हैव टू अप्लाई द ऑप्शन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। आपको जो फॉर्म वगैरह है आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यस आई वांट टू गो फॉर द ओल्ड टैक्स रिजीम, अदरवाइज आप डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में होंगे। और दिस न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी एग्जम्पशन या कोई भी डिडक्शन, एक्सेप्ट जो कुछ फ्यू डिडक्शन है, डीजे डबल जे डबल ए या 80 डबल सी एच या 80 डबल सी डी टू में जो कुछ फ्यू डिडक्शंस हैं, उसी को आपको अलाउ मिलेगा। बट यस वन थिंग इज गुड, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप
उन्होंने अब अलाउ कर दिया है जो सैलरीड क्लास के लिए 50,000 रुपीज की, यू कैन क्लेम अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। और अगर एक बार आप न्यू टैक्स रिजीम में चले गए, देन यू डोंट हैव द ऑप्शन टू गो फॉर द ओल्ड टैक्स रिजीम। और अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्शन ले लिया, देन सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू गो फॉर द न्यू टैक्स रिजीम, एक्सेप्ट दे विल गिव यू वन चांस कि यस यू कैन गो फॉर द न्यू टैक्स रिजीम। सो बिफोर फाइलिंग, जो रिटर्न फाइल करोगे, यू हैव टू चेक कहाँ पे आपका बेनिफिट हो रहा है, ओल्ड टैक्स रिजीम में या न्यू टैक्स रिजीम में। देन इट्स ऑन यू एंड यू हैव टू ऑप्ट फॉर दैट। आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा ऑप्शन। सो अगर हम एक एग्जांपल लें, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड द न्यू टैक्स रिजीम रिवाइज जो बजट में है, जो रिवाइज, मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 का नहीं बता रहा, मैं 23-24 का बता रहा हूँ। और दिस इज फॉर द एनुअल सैलरी। कोई सैलरीड क्लास है, अगर उनकी सैलरी 12 लाख रुपीज है, तो अगर मैं अभी कोई डिडक्शन वगैरह इसमें जो न्यू वाले में है उसको कोई आपको एचआरए नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी आपको 50,000 रुपीज की। तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी? 11,50,000। और अगर वो ओल्ड रिजीम में जाते हैं, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसमें आपको एचआरए भी क्लेम कर सकते हो, डिडक्शन एटीसी में 150 वो भी क्लेम कर सकते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो। तो उस केस में आपका कितना टोटल इनकम होगी? 9 लाख रुपीज। और इस पे टैक्स कितना लगेगा? वो जो न्यू टैक्स रिजीम है, जो इसमें अभी हमने डिस्कस किया था कि आपका 3 लाख टू 6 लाख 5,000 और 6 to 9 10%, तो उसी अकॉर्डिंगली 15,000 प्लस 30,000 प्लस 37 5,000, तो 82,500। इसमें मैं अभी वो जो आपके एजुकेशन सेस वगैरह हैं, हेल्थ एंड उसको मैं काउंट इन कर रहा, मैं सिर्फ टैक्स बता रहा हूँ आपको, 82,500। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे, तो वो जो आपका वहां पे 2,50,000 अब वो 5%, फिर उसके बाद आपका 20% जो है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका टैक्स बनेगा 92,500। सो ये आपका कंपैरिजन है न्यू टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम। गवर्नमेंट ने कहा है कि यस, अभी जो ओल्ड टैक्स रिजीम जो अपने पीछे मैंने डिस्कस करी थी, तो दैट्स आल्सो एप्लीकेबल। तो एसएससी हैव द ऑप्शन, तो यू कैन गो टू द ओल्ड टैक्स रिजीम, बट यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट। आपको बिफोर फाइलिंग द, बिफोर ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट। देन जो एक और अभी आपने क्वेश्चन पूछा था नंदिता जी, कि क्या कंफ्यूजन है कि 3 लाख की वो एक लिमिट होगी और 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। तो उसमें क्या है, एक जो सेक्शन है 87 है, जो ये फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमन जी ने बताया था कि जीरो टैक्स ऑन 7 लाख रुपीज। तो एक जो सेक्शन 87 ए है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए, तो 87 ए पहले था, फिर इसको री इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने फाइनेंस एक्ट 2013 में। तो दिस इज फॉर जो रिबेट है, दिस 87A, दिस इज ओनली फॉर द रेजिडेंट इंडिविजुअल। एचयूएफ और नॉन रेजिडेंट को कोई इसमें रिबेट नहीं है। एंड जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A में, उनके लिए भी नहीं है। एंड देन तो जो अभी तक था, जो असेसमेंट ईयर 20 हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 है, उसमें आपका 5 लाख रुपीज, तो जो आप चाहे न्यू टैक्स रिजीम में जाओ, रिवाइज वाली नहीं मैं बात कर रहा, और जो न्यू टैक्स रिजीम और जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए है, तो उसमें आपको 5 लाख रुपीज तक एक रिबेट मिलेगी 12,500 रुपीज की। तो उसमें कोई टैक्स नहीं होगा, मीन्स अप टू 5 लाख रुपीज। तो अब जो ये बजट में इन्होंने इसको रिवाइज किया है, द असेसमेंट ईयर 24-25, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 12,500 को इन्होंने 25,000 रुपीज कर दिया। तो आप अगर जो हमने वो पीछे टैक्स देखा था कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद आपका नेक्स्ट 3 लाख का 5% है, मीन 15,000, उसके बाद आपका 10% है 10,000। तो टोटल कितना टैक्स बनेगा 7 लाख रुपीज तक अंडर न्यू टैक्स रिजीम, रिवाइज वाली। और एक और चीज जो बताई इन्होंने, जो ये रिबेट मिलेगी, दिस इज जो 7 लाख रुपीज है, दिस इज ओनली फॉर द न्यू टैक्स रिजीम। तो ये आपका पहले टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर आपको रिबेट मिलेगी 25,000 रुपीज की। तो ये जो बोला है उन्होंने बिल्कुल ठीक है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसको 50,000 और काउंट कर सकते हैं, तो 7 लाख 50 स्टैंडर्ड डिडक्शन के, तो 7,50,000 रुपीज तक कोई भी टैक्स नहीं, because rebate under section, but only condition if he opts for the new tax regime। वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेगा तभी है। और इनकम अप टू 7 लाख, अगर 7 लाख से अबो है फिर नहीं मिलेगी आपको। ये नहीं है कि वो लेस कर देंगे, नो, दिस इज अप टू 7 लाख रुपीज। वही मैंने बताया ना कि अब
इनको एक पता नहीं क्या अच्छा सा लगा कि बस ये 87A में ही रिवाइज करे जा रहे हैं, उसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो अभी 250 से 3 लाख करी है। बट थिंक अबाउट, अभी मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ। जो ये 87A की 25,000 की लिमिट है, ये आपका अप टू इनकम अप टू अगर आपकी 7 लाख रुपीज है तभी यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। बट अगर किसी की इनकम 7,01,000 रुपीज है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी, देन यू हैव टू पे फॉर द 25,100 टैक्स। सो 7 लाख पे जीरो टैक्स, 7,01,000 पे 25,100। तो थिंक अबाउट इट कि गवर्नमेंट का कितना नुकसान हो रहा है, व्हाई दे आर ऑप्टिंग दिस रिबेट अंडर सेक्शन 27 उसमें। कि पहले क्या होता था, मैनी क्लाइंट्स, काफी लोग आते थे कि आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, मेरी 500 या 1,000 टैक्स या 2,000 5,000 कुछ टैक्स पे कर देंगे। बट दे डोंट हैव द ऑप्शन कि वो एक जो 7 लाख से कम है तो उसमें, तो वो अगर जाएंगे तो नील रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, कोई टैक्स नहीं है। तो दे वांट टू शो कि यस वी आर पेइंग द टैक्स, बट अब कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? स्टार्टिंग से ही आपको 25,000 से स्टार्ट होगा, 25,001 या 25,010 या 25,100 रुपीज आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देन ये गवर्नमेंट लॉस कर रही है। एंड सेकेंड थिंग, जो मैंने आपको बताया रिबेट जो 7 लाख तक, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो 5 लाख तक एग्जाम्पशन आपको वो मिलेगा, अप टू 5 लाख रुपीज जो है, नो जीरो टैक्स ऑन द 5 लाख रुपीज। 7 लाख नहीं है जो ये रिवाइज कर रहा है जिन्होंने 87 है। दिस इज ओनली फॉर द न्यू टैक्स रिजीम जो है रिवाइज, और जो बाय डिफॉल्ट है आपको ऑप्ट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग द जो आपका आप क्वेश्चन था कि जीरो टैक्स या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो इट्स रियली डिफिकल्ट। इवन आई वाज रीडिंग ऑन सम सोशल मीडिया न्यूज, एक फाइनेंस मिनिस्टर की एक पिक लगा रखी थी कि मेरा काम तो हो गया, अब आपने जो स्लैब रेट्स या कुछ और कंफ्यूजन है तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनसे पूछिए। तो मैम ने तो इशू कर दिया, तो अब कंफ्यूजन क्या है, सीए या फिर जो टैक्स प्रोफेशनल है, दे विल गाइड टू द क्लाइंट्स। सो आई थिंक, आई होप जो आपका क्वेश्चन था, क्वेरी थी, नाउ इट्स सोल्व्ड। सो इफ एनी अदर क्वेरी यू कैन आस्क नंदिता जी। No, sir, thank you so much for such a wonderful presentation, and I hope that it is also beneficial for our all the users. And I request you all that please like the video, share it with your maximum friends so that they can also get the benefit of it. And for any kind of query, please mention it on the comment section. We will reply as soon as it will be possible. Thank you so Yes. much for joining. yes even if you have query, any further query, you can message me। आपके पास मेरा नंबर तो है व्हाट्सएप पे, मैंने बता दिया। और यू कैन आल्सो राइट इनटू द कमेंट बॉक्स, तो आई विल ट्राई टू आंसर इट। आपको विल जैसे टाइम मिलेगा विल ट्राई टू आंसर इट। एंड इवन फर्दर इफ यू हैव सम मोर क्वेरीज तो विल ट्राई टू रिकॉर्ड सम अनदर वीडियो। अगर कुछ और इश्यूज आते हैं इसके अंदर, जो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के ऊपर हैं या न्यू स्कीम या ओल्ड स्कीम क्या ऑप्ट करनी है, तो उसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।